गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? घर पे ही रहिए, घर पे ही रहिए और सेफ रहिए. Okay, so start we are going to start the new topic that is called as block architecture of AI system. Before going to start the block architecture of AI system, we just have to recall the previous topics. That is, in previous topics we discussed about the definition of artificial intelligence. We also discussed about the characteristics of AI, and we saw the brief history of artificial intelligence in previous decades or previous century. What are the different inventions are there? What are the different papers are published in the on artificial intelligence. We also look about Frankenstein, Talking Head, Mechanical Turk, Father of Computers, Dartmouth Conference, where the artificial intelligence term is coined there in Dartmouth Conference, okay, which is held. Next, uh, today's topic is based on block architecture of AI system. How the AI system is built, and what are the different different computational blocks of artificial intelligence. Okay, so let's start. In artificial intelligence is based on mostly three blocks. Three components are there. There is first one is knowledge base, second one is inference engine, and third one is user interface. First, start with the user interface. User interface, it provides the facility to the users to communicate with the system, communicate with the system, that is a computer machine, or the machine where the AI is present. That is nothing about your GUI. Okay, next, talk about the inference engine. Inference engine is nothing about which draw the conclusions from the database, basis on the knowledge base. It draws the conclusions or gives the suggestions or gives the conclusion or gives the result on the basis of data present in the knowledge base. Okay, now last component is, that is knowledge base. Knowledge base is what? Knowledge is a collection of facts and rules. In the knowledge base, the domain specific knowledge is also required. Domain specific knowledges can be stored there. It consists of axioms, facts, rules, okay, and many entities are stored in there. Knowledge base is different than your database and knowledge base is different entities. Okay, uh, so basically we have a three basic component: knowledge base, inference engine, and user interface. Okay, first of all हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट अबाउट द नॉलेज बेस एंड नॉलेज बेस. नॉलेज बेस की अगर बात करूँ तो नॉलेज बेस इज नथिंग अबाउट, इट्स डिफरेंट देन डेटाबेस. डेटाबेस की अगर बात करूंगा तो डेटाबेस में हमारा जो डेटा स्टोर होता है इन दी फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स में हमारा डेटा स्टोर होता है, और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमारा डेटा स्टोर होता है, जिसमें कि हमारा डेटा जो होता है रोज में स्टोर होता है और डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स कॉलम्स में हम हमारा डेटा स्टोर किया जा सकता है. बट यहाँ पे हम नॉलेज बेस की बात कर रहे हैं. नॉलेज बेस इज डिफरेंट देन योर डेटाबेस. नॉलेज बेस, नाउ व्हाट इज नॉलेज? कोई बता सकता है नॉलेज क्या होता है? नॉलेज इज, वी हैव एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे पास में नॉलेज है. एज अ इंजीनियर, I am an engineer, so I know about what is engineering, what is a computer science engineering. I also know the uh, I I also know the basics of education systems. मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th 12th भी पढ़ा, 12th के बाद में फिर इंजीनियरिंग पढ़ा. सो मुझे इसके बारे में, इंजीनियरिंग के स्पेसिफिक डोमेन के बारे में भी मुझे काफ़ी डिटेल से पता हुआ है. बट अगर मैं बोलूँ या कोई अगर मुझे पूछे कि क्या मेरे पास में डॉक्टरी का नॉलेज है, सो आई कैन से दैट नो, आई डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ मेडिसिन स्ट्रीम और डॉक्टरी. ऐसा क्यों हुआ?
क्या मेरे पास में नॉलेज नहीं था? हाँ, मेरे पास में नॉलेज था, बट डॉक्टरी का नहीं था, क्योंकि मैंने उस स्पेसिफिक डोमेन में मेरा नॉलेज नहीं है। बट मेरा जो नॉलेज है वो स्पेसिफिक इंजीनियरिंग फील्ड में है, और इंजीनियरिंग फील्ड में भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड का ही है। मेरे पास में ईटीसी का नॉलेज नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का नॉलेज नहीं है, इलेक्ट्रिकल का नहीं है, मैकेनिकल का नहीं है, बट आई हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ I have an expert knowledge of computer science of engineering, but basic knowledge of all the fields. Okay, so we are going to store the knowledge. अब नॉलेज में क्या होता है, हमारे पास में जो दिमाग में जो नॉलेज है, हम उसको किस तरीके से स्टोर कर पाएंगे। ये नॉलेज बेस का जो यूनिट है वो काफ़ी हम नेक्स्ट टू से थर्ड यूनिट में हम नॉलेज बेस देखेंगे, नॉलेज बेस कैसे बनाया जाता है। इट्स नॉट लाइक यूर डेटाबेस स्टोर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज़ डिफरेंट। नॉलेज बेस बहुत अलग है आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के तरीके से या फिर डेटाबेस से। नॉलेज बेस में आपका जो भी नॉलेज है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे मेरे पास में किसी प्रोग्रामिंग का नॉलेज है, फॉर एग्जांपल मुझे अगर जावा आता है तो मेरे पास में जावा का नॉलेज है, तो मैं ये जावा को का नॉलेज में मेरे जावा का नॉलेज मतलब मेरा जो जावा का नॉलेज है, किसी एक्सपर्ट का जावा का नॉलेज कोई अलग अलग होगा। मेरे जावा का जो नॉलेज है वो इंटरमीडिएट है। अगर मैं किसी डेवलपर की बात करूंगा तो वो एक्सपर्ट होगा। अगर मैं किसी स्टूडेंट की बात करूंगा तो वो हो सकता है कि उसके पास में जो नॉलेज है वो बिगिनर लेवल का हो। तो यहाँ पे भी नॉलेज की भी बहुत सारी कैटेगरीज है। तो ये जो नॉलेज है जो हमारे ह्यूमन बीइंग के ब्रेन के अंदर में स्टोर्ड है, ये नॉलेज को हमें सिस्टम के अंदर में स्टोर करना पड़ेगा और हमें उसका एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे नॉलेज बेस और नॉलेज का डेटाबेस, नॉलेज डेटाबेस। सो इट्स अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड रूल्स। जो भी हमारे पास में नॉलेज होगा उसको हमें जो भी हमारे पास में नॉलेज होगा हम उसको बोल सकते हैं इट्स अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। फॉर एग्जांपल, इट्स अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। एग्जांपल दे रहा हूं, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट। सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट। ठीक है। अगर मैं बोलूं सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट, इज इट पॉसिबल? नो, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो सूरज है वो हमेशा पूर्व से आने वाला है, पूर्व से राइज होता है और वेस्ट में, पश्चिम में वो सनसेट हो जाएगा। सो इट्स अ फैक्ट। सिमिलर वे से हमारे पास में जो नॉलेज होने वाला है वो नॉलेज में भी हमारे पास में फैक्ट्स हो गए, रूल्स हो गए, एक्सियोम्स हो गए, वो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम बनाकर हम नॉलेज बेस बनाएंगे। ठीक है। Next, come to the next point, inference engine. Inference engine is nothing about the mechanism which is used your knowledge to draw the some conclusions. Inference engine is nothing about एक mechanism, एक मतलब वहां पे मैं बोल सकता हूँ कि वहां पे एक दिमाग है, दिमाग बैठा हुआ है। वो दिमाग क्या करेगा, आपके नॉलेज से डेटा उठाएगा, नॉलेज को प्रोसेस करेगा, उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर निकाल के देगा। सो इट इज नथिंग अबाउट, इट्स जस्ट अबाउट द ड्राइंग अ कंक्लूजन्स, मतलब कंक्लूजन्स निकाल के देना है, रीजनिंग करके देना है। तो जो कैपेबिलिटी होगी एआई की, ये इन्फेरेंस इंजन से बनाई जाती है, एआई की जो इन्फेरेंस इंजन से डेवलप होगी। तो अगर इन्फेरेंस इंजन नहीं होगा तो एआई का कोई मतलब नहीं है। आप नॉलेज स्टोर कर दो, यूजर इंटरफेस सिंपल, वो नॉलेज को देखेगा, कोई मतलब नहीं। बट अगर हमारे पास में इन्फेरेंस इंजन है तो अगर प्रीवियस नॉलेज स्टोर है तो हम उससे नया नॉलेज भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। Okay, so inference engines, it's nothing about the utilization of facts which and rules which is stored in your knowledge base and carried out the search throughout the knowledge base and prove the hypothesis to arrive at some conclusions. And user interface, next, यूजर इंटरफेस सिंपल है। इट्स अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जहाँ पे कि यूजर और ह्यूमन मशीन्स के साथ में और कंप्यूटर्स के साथ में इंटरेक्ट करेगा, दैट इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सो दैट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, बेसिक block architecture of artificial intelligence. Okay, so next topic is very interesting, which is Turing test approach. Turing test approach is suggested by Alan Turing.
आप देख सकते हो एलन ट्यूरिंग, देयर इज अ वन पिक्चर ऑफ एलन ट्यूरिंग जिन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट अप्रोच के बारे में सजेस्ट किया था। और अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जिस्टेंस में है तो हमें ट्यूरिंग टेस्ट करना चाहिए उस मशीन के ऊपर में हम ट्यूरिंग टेस्ट करते हैं। सो इट्स अ कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस जो कि पब्लिश किया था उन्होंने 1950 में, ओके, which is used to detect whether the machine has become intelligent as human or not। मतलब जो हमने मशीन बनाई है क्या वो उतनी इंटेलिजेंट हो चुकी है कि ह्यूमन के समान हो, ह्यूमन के दिमाग, ह्यूमन के बराबर हो या नहीं हो, हमें वो टेस्ट करना है। मशीन जो हमने बनाई है जिसके अंदर में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप किया है, क्या वो ह्यूमन के बराबर या फिर ह्यूमन से बेटर है या नहीं है, हमें वो टेस्ट करना है कि वो ह्यूमन के बराबर है या नहीं है। सो दैट इज नथिंग अबाउट द ट्यूरिंग टेस्ट अप्रोच। ओके, सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये हमेशा यूनिवर्सिटीज में पूछा जाता है, हमेशा कहीं पे भी अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होगी तो पहला टॉपिक आपसे यही पूछा जाएगा, व्हाट इज द ट्यूरिंग टेस्ट अप्रोच, व्हाई वी आर गोइंग टू टेस्ट ट्यूरिंग टेस्ट, एंड what are the who developed the Turing test approach, that is Alan Turing in 1950. Okay, so let's talk about the Turing test. Turing test is simple approach. There is imagine there is a 3 rooms are there, 3 रूम है, तीनों रूम के अंदर में अलग अलग इंसान, अलग अलग चीज, अलग अलग इंसान है। एक रूम के अंदर में, रूम नंबर 1 में एक कंप्यूटर मशीन लगी हुई है जिसके अंदर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। रूम नंबर 2 में कोई इंसान बैठा हुआ है, जिससे कि मैं इंसान बैठा हुआ है वो अपने वो बैठा हुआ है, ठीक है। और दूसरे तीसरे रूम के अंदर में एक ह्यूमन क्वेश्चनर बैठा हुआ है, ठीक है। अब ह्यूमन क्वेश्चनर को नहीं पता कि किस रूम में कंप्यूटर मशीन है और किस रूम में ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन रिस्पोंडेंट है। ओके, सो ह्यूमन क्वेश्चनर्स now going to fire some series of questions to computer correspondent and ह्यूमन रिस्पोंडेंट ऑल्सो। दोनों को वो क्वेश्चन, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस फायर करेगा और वो क्वेश्चन फायर कर करके जो भी उसके आंसर्स होंगे वो आंसर्स को रिकॉर्ड करेगा। अब ह्यूमन क्वेश्चनर्स को ये नहीं पता कि किस रूम में इंसान है और किस रूम में ह्यूमन बैठा हुआ है, वो ह्यूमन क्वेश्चनर्स को नहीं पता। ह्यूमन क्वेश्चनर्स क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस वो जज करेगा कि जो सामने वाले जो मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो दोनों में से कौन सा ह्यूमन बीइंग है और कौन सा कंप्यूटर मशीन है। अगर कंप्यूटर मशीन मुझे फूल बना, मतलब मुझे बेवकूफ बना दिया कि हाँ भाई मैं इंसान हूं और इंसान हूं, तो मैं समझूंगा कि हाँ कंप्यूटर मशीन के पास में एआई है। या फिर अगर मैं क्वेश्चनर हूं और क्वेश्चनर ने ये पता कर लिया कि हाँ भाई ये एग्जैक्टली कंप्यूटर मशीन है और ये ह्यूमन बीइंग है, इनको मैं प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर लिया, तो यहाँ पे ट्यूरिंग टेस्ट फेल हो जाएगी। अगर कंप्यूटर मशीन ने मुझे फेल कर, मतलब मुझे फूल कर दिया कि मैं क्वेश्चनर्स को फूल कर दिया कि मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, एज अ ह्यूमन मैं आंसर दे सकता हूँ, तो that is a there is Turing test is passed। Okay, during the Turing test human questioners ask a series of questions to both the respondent. After the specific time the questioners tries to decide which terminal is operated by human respondent and which terminal is operated by the computer। okay, यहाँ पे human questioners का बहुत important task है। It's like a judge is now going to decide which is the human respondent and which one is computer respondent। अगर उसने प्रॉपरली करेक्ट डिसीजन दिया तो ट्यूरिंग टेस्ट फेल होगी। अगर एआई ने अगर जज को फूल बना दिया, दैट मीन्स ट्यूरिंग टेस्ट पास हो गई। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। ओके, सो इन 1990 देयर इज अ वन साइंटिस्ट दैट इज कॉल्ड एज लोबनर। तो उन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट के लिए एक प्राइज डिसाइड किया था जिसको हम बोलते हैं लोबनर प्राइज। तो ये जो लोबनर प्राइज है दैट इज $1,00,000 $100,000 का है ये गोल्ड। एंड इसके साथ में ही आपको गोल्ड प्राइज मिलता है। आप देख सकते हो कि स्क्रीन पे गोल्ड मेडल मिल रहा है। ये 1990s में टेस्ट हुआ था। अगर कोई भी कंप्यूटर मशीन
वो इस तरीके से रिस्पॉन्स करे कि वो इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाए कि वो ह्यूमन बीइंग है या फिर मशीन है। और अगर उसने ट्यूरिंग टेस्ट अगर पास कर लिया तो आपको 100,000 डॉलर्स मिलेंगे। ओके, एंड प्लस गोल्ड कॉइन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट इज एवरी टाइम, अभी तक के मैंने जितने भी बार, मतलब 7 से 8 बार मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाया हुआ है। और उसमें मैंने जहां जहां पे भी सीरीज ऑफ जिस भी यूनिवर्सिटी की बात करूं वहां पे ये क्वेश्चंस आपको फर्स्ट मिलेगा ही मिलेगा एवरी टाइम। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट इट डाउन। सो दिस इज these are the two topics we discussed here now. अगर आपको यहाँ पे कहीं क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शंस में कमेंट कीजिए, और कमेंट प्रॉपरली कीजिएगा। अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप वहाँ पे प्रॉपरली कमेंट कीजिए ताकि मैं उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में कर पाऊँ। ओके, टुडे दैट इज फ्रॉम ऑल माय साइड। थैंक यू, हैव अ सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।